નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું આપનું ફરી પાછું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગયા લેક્ચરમાં આપણે પાઠ 3 જે છે એ જોયો હતો। અહીંયા લેખક જે છે અહીંયા જે છે પાઠનું શીર્ષક છે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય। એ ત્રીજા પાઠની અંદર લેખકનો કહેવાનો હેતુ એવો છે કે આજે ઘણા બધા એમ કે દેશની અંદર વાતાવરણ દિવસે દિવસે ખરાબ થઈ રહ્યું છે। સમાચાર પત્રોમાં ચોરી, ડકેતી અને ભ્રષ્ટાચારના સમાચારો ભરેલા રહે છે, એથી એમનું મન જે છે ઉદાસ થઈ જાય છે। પણ લેખક કહે છે કે અહીંયા પાઠનો હેતુ એવો છે કે તમે જેવી રીતે એમ કે ખરાબ કિસ્સા જે છે અથવા તો કોઈ એવી દુર્ઘટનાઓ છે, બુરાઈ છે, એના તમે જે પ્રચાર કરો છો અને એ પણ એની અંદર જે છે તમે વધારે થોડુંક ઉમેરીને જે કિસ્સાઓ કહો છો, તમે જે ખરાબ કિસ્સા હોય છે એને તમે યાદ રાખો છો અને બધા લોકોને જે છે એ ઊભા રાખી અને તે બુરા કિસ્સાઓ જે છે સંભળાવો છો। એવી રીતે લેખક કહે છે કે તમારા જીવનમાં કોઈ સારા કિસ્સા બનેલા હોય અથવા તો તમને કોઈ સારો એવો અનુભવ થયો હોય તો એને પણ તમારે એટલી જ આતુરતાથી અને જિજ્ઞાસા સાથે બીજાને કહેવો જોઈએ, જેથી કરીને આપણા મનની અંદર જે છે સારા ભાવ ઉત્પન્ન થાય અને સારા જે છે એ કિસ્સા સાંભળીને લોકોને પણ સચ્ચાઈ અને ઈમાનદારી ઉપર વિશ્વાસ હંમેશા રહે। એટલે લેખક કહે છે કે જેટલા તમે એમ કે સારા કિસ્સાઓનો ખરાબ કિસ્સાઓનો પ્રચાર કરો છો એટલો જ તે તમે સારા કિસ્સાઓનો પણ પ્રચાર કરો। ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું હતું કે એક ટિકિટ માસ્ટર જે હોય છે તે લેખકને પૈસા દેવા માટે છેક ગાડીના ડબ્બા સુધી જાય છે। લેખકે ભૂલથી એમને જે છે 10ની બદલે 100 રૂપિયાની નોટ આપી દીધી હોય છે અને લેખક જે છે એ તે પૈસા જે છે 100 રૂપિયામાંથી 90 રૂપિયા જે છે એ પાછા આપવા માટે છેક ગાડીની અંદર જાય છે ને લેખકનો ચહેરો જે છે ઓળખતા જાય છે અને તે લેખકને ગોતી અને લેખકના હાથમાં એ 90 રૂપિયા આપે છે અને ત્યારે એના મોઢા ઉપર એક પ્રકારનો અનેરો આનંદ જે છે એ જોવા મળે છે। તો લેખક કહે છે કે હું આ બે કિસ્સાઓ તમારી સમક્ષ એટલા માટે મૂકું છું કે આપણે પણ આવા જે આપણા જીવનમાં કોઈ ઈમાનદારીથી ભરેલા કિસ્સાઓ બનેલા હોય તો એનો આપણે વધુ પ્રચાર કરવો જોઈએ। કારણ કે આપણે શું કરીએ છીએ કે માત્ર ને માત્ર જે છે એ બુરાઈને જ યાદ રાખીએ છીએ। આપણા જીવનમાં કોઈ એવી દુર્ઘટના બની હોય, એવા કિસ્સા બનેલા હોય એને આપણે હંમેશ માટે યાદ રાખીએ છીએ, પણ કેટલાક સારા કિસ્સાઓ પણ આપણા જીવનમાં બનેલા હોય છે। કોઈ આપણું જે છે એ પૈસાથી ભરેલું પાકીટ આપણને પાછું આપ્યું હોય તો એ કિસ્સો પણ આપણે યાદ રાખવો જોઈએ, કેમ કે ઘણા લોકો જે છે ઈમાનદાર પણ હોય છે। એટલે લેખકનો કહેવાનો મતલબ છે કે એમ કે ભલે એમ કે સંસારની અંદર હજી પણ એમ કે ચારે બાજુ બુરાઈ છવાયેલી હોય, પરંતુ ઘણા બધા લોકો હજી પણ ઈમાનદારીથી જીવે છે। એટલે મારા મનને નિરાશ થવાની જરૂર નથી, એટલે તેઓ નિરાશ નથી થતા અને આપણને પણ નિરાશ થવા માટે કહેતા નથી। આપણે પણ એટલો દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે હજી પણ આપણા દેશની અંદર સચ્ચાઈ અને ઈમાનદારી સાવ નાબૂદ થઈ નથી। ગયા લેક્ચરમાં આપણે એ કિસ્સો ટિકિટ બાબુનો જોયો હતો। આજે આપણે ફરી પાછો એક બીજો કિસ્સો છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में कई ऐसे सच्चाई और ईमानदारी के किस्से बने हुए हैं, अनेक घटनाएं हुई है, लेकिन यह जो किस्सा है जो लेखक सुनाना चाहते हैं वो सबसे अलग है और शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य स्थान से कोई 5 मील पहले ही एक दुर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रास्ते में कोई 10 बजे हो गए। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेखक एक बार बस से यात्रा कर रहे थे और साथ में उनके परिवार भी थे। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे उनके साथ थे।
जब वे बस में बैठे थे तो उन्हें लग रहा था कि बस में कुछ खराबी है और बस जो है वह रुक रुक कर चलती थी। यानी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बस में कोई खोट है या कुछ खराबी है, इसलिए वह रुक रुक कर चल रही है। और अचानक ही एक सुनसान जगह पर यह बस जो है खराब हो जाती है, बंद हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है कि बस खराब हो जाती है, चारों ओर अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, निर्जन स्थान था। और ऐसे निर्जन स्थान पर बस जो है अचानक ही रुक जाती है। ऐसे में जो कंडक्टर था वह भी क्या करता है, कुछ बिना बताए ही वहाँ से जो बस पर रखी हुई एक साइकिल थी वो साइकिल लेकर चला जाता है। इसलिए लोगों में जो है चिंता और बढ़ जाती है। वे आपस में बातचीत करते हैं, शंका जो है वह करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें धोखा दिया जा रहा है, निश्चित यहाँ पर बस में लूट चलाई जाएगी, क्योंकि समाचार पत्रों में ऐसे कई समाचार भरे रहते हैं। इसलिए लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमें धोखा दे रहा है। सब लोग डर गए थे क्योंकि इतना निर्जन स्थान था, इतना अंधकार फैला हुआ था, इससे लोगों को बहुत डर लगने लगा था। और उन्हें लग रहा था कि बस वाले बस कंडक्टर और ड्राइवर जो है हमें धोखा दे रहे हैं। लोग भयभीत से हो गए थे और लेखक अपने परिवार के साथ थे, इसलिए उनको भी थोड़ा सा डर लग रहा था। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इस तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर भी समा गया था। जो बस में बैठे यात्री थे वो तरह तरह की बातें कर रहे थे, एक दूसरे को डरा रहे थे, क्योंकि उनके मन में जो है वो नेगेटिविटी भरी हुई है। क्योंकि समाचार पत्रों में उन्होंने बहुत सारे बुरे समाचार को सुना था और ऐसे जगह पर लूट चलाई जाती थी ऐसा उन्होंने सुना था। इसलिए आपस में वे बात कर रहे थे कि ऐसे निर्जन स्थान पर हमारी बस रुकी हुई है तो निश्चित यहाँ डकैती होगी। डकैती यानी डाकुओं जो एक साथ लूट चलाते हैं उसे हम डकैती कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसे निर्जन स्थान पर डकैती होगी। और 2 दिन पहले ही ऐसे इस प्रकार बस को लूटा गया था। सभी यात्री बहुत घबराए हुए थे और लेखक के छोटे छोटे बच्चे जो थे वो पानी के लिए चिल्ला रहे थे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और सुनसान जगह थी और बच्चे जो है पानी के लिए तरस रहे थे, इसलिए वे पानी चिल्ला रहे थे। लेखक के बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। लेखक को बहुत डर लग रहा था क्योंकि परिवार सहित वे अकेले ही थे, साथ में और कोई परिवार के साथ नहीं आया हुआ था, क्योंकि रात का समय था इसलिए कोई ज़्यादातर परिवार के साथ नहीं निकलता है। लेकिन लेखक अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ परिवार के साथ निकले हुए थे। उस पर ये तरह तरह की बातें कर रहे थे, इसलिए लेखक के मन में भी ऐसा डर बैठ गया था, अब क्या होगा। और बच्चे जो है वह रो रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे पानी के लिए, तो लेखक को बहुत डर लग रहा था। ऐसे में आदमियों का डर भी उन्हें बहुत लग रहा था कि कहीं यहाँ पर डकैती न हो जाए। कुछ नौजवानों ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़ी कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। और कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। बस में तरह तरह के लोग बैठे हुए थे, उसमें कुछ नौजवान भी थे। उन नौजवानों ने सोचा कि निश्चित हमें कोई धोखा दिया जा रहा है, निश्चित हमें इस बस की लूट होगी। इसलिए इस उद्देश्य से कुछ नौजवान जो हैं वे क्या करते हैं, वह बस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और मारने पीटने का जो उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया था कि
बस कंडक्टर को पकड़कर मैं उसे हम सब उसे मिलकर मारते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बस ड्राइवर को जो है पकड़ लिया और उसको मारने पीटने का इंतजाम कर लिया और चारों ओर से उनको घेर लिया। बस ड्राइवर को सबने, नौजवानों ने घेर लिया और वो जो आदमी था वो इतना भयभीत हो गया, कातर ढंग से लेखक की ओर देख रहा था। कातर ढंग यानी बहुत ही भयभीत होकर वह लेखक की ओर देख रहा था, क्योंकि लेखक का चेहरा जो है वो पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा था और वे बड़े ही सज्जन दिखाई दे रहे थे। बाकी सब लोग जो है नौजवान वो इतने गुस्से में थे और ड्राइवर को पकड़कर उससे मारने पीटने का इतना इंतजाम बना लिया था कि अभी उससे मारेंगे, यानी कि बस ड्राइवर बहुत भयभीत हो जाता है और लेखक से कहता है कि मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मारेंगे, क्योंकि लेखक जो है वो अलग से बैठे हुए थे और नौजवानों के साथ नहीं थे। इसलिए बस ड्राइवर को ऐसा लगा कि शायद ये लेखक जो है वो मुझे बचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, बस ड्राइवर ने क्या कहा कि आप मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। लेकिन नौजवान जो सभी लड़के थे वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेखक कहते हैं, नौजवानों को समझाते हैं कि इस तरह किसी को मारना उचित नहीं है, हमें थोड़ी राह देखनी चाहिए। लेकिन नौजवान जो है वे कहते हैं आप चुप रहिए, आप नहीं समझेंगे, क्योंकि बस कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है और वह डाकू को लेकर आता ही होगा। पहले जो था वो डकैती होती थी, डाकू का बड़ा भय रहता था और एक साथ बस यात्री को लूटा जाता था। इसलिए यहाँ नौजवान कहते हैं आप चुप रहिए, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ जो कंडक्टर है वह बिना बताए किसी को वहाँ से चला गया था और निश्चित वह डाकू के पास ही गया होगा और अभी डाकू हमको लूटने के लिए आते ही होंगे। इसलिए इस बस ड्राइवर को मार पीट कर हम उससे सच उगलवाएंगे और पता करेंगे कि सचमुच क्या है। तो इस प्रकार जो है लोग जो हैं वो ड्राइवर को पकड़कर उसको मारने पीटने का कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन लेखक उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। मैं भी बहुत भयभीत था। ड्राइवर को किसी तरह मारने पीटने से तो मैंने बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर बस से उतारकर एक जगह पर घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय में क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से एक नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने के लायक नहीं है। फिर मैं मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले हम सब बस अड्डे पहुंच गए। लेखक भी बहुत भयभीत थे और ड्राइवर को किसी तरह से लेखक ने मारने पीटने से तो बचा लिया। लेखक ने सबको समझाया कि इस तरह किसी को मारना उचित नहीं है, हमें थोड़ी राह देखनी चाहिए। इसलिए ड्राइवर को किसी ने मारा पीटा तो नहीं, लेकिन उसे बस से नीचे उतार दिया और कई नौजवान उससे घेर कर चारों ओर घेर कर उसे बीच में रख लेते हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि यदि कोई दुर्घटना होती है, यदि कोई डाकू वहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले इस ड्राइवर को समाप्त कर देते हैं। उनके मन में जो है बुरे विचार आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि यदि कोई दुर्घटना होगी और कई डाकू हमको घेर लेंगे तो सबसे पहले हम इस ड्राइवर को समाप्त कर देंगे। और वह जो ड्राइवर था इतना भयभीत हो गया था, चारों ओर कातर ढंग से देख रहा था। उसे लग रहा था कि ये लोग मुझे मारेंगे तो मैं यूं ही मर जाऊंगा। इसलिए वह बहुत भयभीत था और कातर ढंग से देख रहा था। और
उसके रोने और गिड़गिड़ाने का कोई प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ रहा था। ऐसे में लेखक क्या देखते हैं कि अंधेरे में दूर से कोई एक खाली बस दिखाई देती है, उसमें वह कंडक्टर भी सवार था और वह बस जो है वहाँ यात्री जहाँ खड़े थे वहाँ आकर वह बस जो है वह रुक जाती है। उसमें से वही कंडक्टर उतरता है और सब लोगों को कहता है कि यह बस जो है उसमें थोड़ी खराबी थी और वह चलने के लायक नहीं थी, इसलिए मैं बस अड्डे से यानी कि बस स्टेशन से मैं एक नई बस लेकर आया हूँ। मुझे लग रहा था कि यहाँ निर्जन स्थान पर डाकुओं का खतरा है, इसलिए मैं किसी को बिना बताए ही साइकिल लेकर बस अड्डे चला गया था और बस अड्डे से मैं एक नई बस लेकर आया हूँ और आप सब इस बस में बैठ जाइए, हम आपको सुरक्षित जगह पर पहुँचा देंगे। और लेखक के पास जाकर वह कहता है कि पंडित जी, आपके बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे, पानी पानी चिल्ला रहे थे, उसका रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं कहीं से थोड़ा दूध मिल गया तो मैं आपके बच्चों के लिए थोड़ा सा लोटे में दूध ले आया हूँ और साथ ही में थोड़ा सा पानी भी ले आया हूँ। आपके बच्चे रो रहे थे, इससे मुझे बहुत उन पर दया आ गई थी, इसलिए मैं आपके बच्चों के लिए क्या लाया हूँ, दूध और पानी लाया हूँ और लेखक को देते हैं। लेखक आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उसका आभार मानते हैं और यात्री भी ड्राइवर से माफ़ी मांगते थे क्योंकि उन्होंने ड्राइवर को बहुत कुछ कहा सुना था और वह इतना भयभीत हो गया था। उस नौजवान ने तो उसे सीधे करने के लिए उसे मारने पीटने का भी कार्यक्रम बना रखा था और वह इतना भयभीत था। ऐसे में सभी यात्री आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि बस कंडक्टर ने अच्छा काम किया था और बस अड्डे से एक नई बस लेकर आया था और सभी यात्रियों से माफ़ी मांगता है कि मैंने आपको कहीं बिना बताए मैं आपको से चला गया और यह बस जो है उसमें थोड़ी खराबी थी और वह आगे चलने के योग्य नहीं थी, यहाँ निर्जन स्थान पर कोई दुर्घटना होगी, इसलिए मैं किसी को बिना बताए ही नई बस लेने चला गया था। और सभी यात्री उस पर नई बस में बैठते हैं और 12 बजे से पहले सभी यात्री अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थान पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बात का हिसाब रखोगे जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में कहा है कि भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसे अवसरों पर भी हे ईश्वर तू मुझे शक्ति देना कि मैं तुम पर संदेह न करूं। लेखक कहते हैं दोनों किस्से लेखक के जीवन में बनते हैं। एक तो जो है टिकट मास्टर जो है उसने ईमानदारी से अपना काम किया और पैसे लौटाए, और दूसरा किस्सा जो लेखक के जीवन में बनता है वो सबसे शक्तिशाली है क्योंकि बस ड्राइवर जो है लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी तो लाता ही है, साथ ही साथ एक नई बस भी लेकर आते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी एकदम समाप्त हो गई है, और कैसे कहूँ कि दया माया किसी लोगों में है ही नहीं। ऐसी कई घटनाएं होती है जो हमारे निराश मन को ढाढ़स बढ़ाती है, यानी कि हमें हिम्मत देती है। ढाढ़स बढ़ाना यानी हिम्मत देना। लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में मैं कई बार जो है मैंने धोखा भी खाया है, कई बार मुझे ठगा भी गया है, लेकिन मैं ऐसे ही किस्से याद रखूंगा तो जीवन जो है हमारा कष्टकर बन जाएगा। लेखक का कहना है कि हमें जो बुरे किस्से हैं उसे याद नहीं रखना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए। लेखक कहते हैं हमारे जीवन में मेरे जीवन में कई बार मैं ठगा भी गया हूँ, मुझे धोखा भी मिला है, लेकिन विश्वासघात मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। इसलिए लेखक कहते हैं हम बुरे किस्सों को बहुत ज़्यादा याद रखते हैं और उसको ही हम लोगों को बताते रहते हैं।
कभी कभी हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं होती है तो उसका भी हमें लोगों से जिक्र करना चाहिए। यहाँ दोनों किस्सों को कहने का लेखक का तात्पर्य यही है कि ईमानदारी और सच्चाई से भरे जो किस्से हमारे जीवन में बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने चाहिए, ताकि लोगों के मन में भी सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास बना रहे और वे निराश न हो, सभी पर संदेह न करें। इसलिए हमें अच्छे किस्से सुनाने चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी से भरे किस्से को सुनाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ऐसी कई घटनाएं होती है जिससे हमें निराशा उत्पन्न होती है, लेकिन हमारे देश में ऐसे कई भी लोग हैं जो आज भी ईमानदारी से जी रहे हैं। कवि रविंद्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति को याद करते हैं कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में कहा है, चाहे कितना भी जीवन कष्टकर हो, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसे समय पर भी हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना कि हे ईश्वर मुझे तुम पर जो विश्वास है वो विश्वास कभी न डगमगाए। इसलिए लेखक जो है यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्ति को याद करते हैं कि चाहे इस संसार में धोखा ही मिले या संसार में धोखा, भगवान से प्रार्थना करते हैं केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसे समय में हम निराश हो जाते हैं। जब हमें संसार में नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा उठाना पड़े, धोखा सब लोगों से मिले, ऐसे समय में हमें ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए। ऐसी पंक्ति जो है रविंद्रनाथ टैगोर की, उस पंक्ति को लेखक याद करते हैं, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसे समय पर भी हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर की शक्ति हमेशा हमें सद्गुणों से भर देती है, यानी कि ईश्वर की शक्ति पर हमें कभी संदेह नहीं होना चाहिए। मनुष्य की बनाई हुई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तु तो आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। आज संसार में कुछ लोग भले ही उन गलत रास्ते पर चढ़ गए हैं और बुराई और बेईमानी का साथ भले ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतवर्ष में ऐसे जो संस्कार पड़े हुए हैं, जो मानव को आज भी सच्चाई और ईमानदारी के जो गुण है वह भुलाने कभी नहीं देंगे। लेखक कहते हैं कि मेरे मन को निराश होने की जरूरत नहीं है। आज भले ही माहौल खराब है, लोग भले ही भ्रष्टाचार और ऐसे बेईमानी और ठगी और धोखेबाजी से गुजरते हों, लेकिन उनके मन में आज भी सच्चाई और ईमानदारी के प्रति विश्वास जो है वह बना हुआ है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मेरे मन को अभी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारतवर्ष है, भारत देश है, जहाँ कई गुणी लोग रहते हैं और यह जो गुण जो है सच्चाई और ईमानदारी के गुण वह भारतवर्ष के संस्कृति में ही निहित है। इसलिए मेरे मन को निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक कहते हैं कि आज भी सच्चाई और ईमानदारी से भरे हुए कई किस्से दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर पाठ जो है उसमें लेखक का कहने का तात्पर्य यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई और ईमानदारी से भरे किस्से लोगों को जो है सुनाने चाहिए, ताकि लोगों के मन में भी ऐसे सच्चाई और ईमानदारी के गुण जो है विद्यमान रहें। तो लेखक कहते हैं कि हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी और सच्चाई के किस्से सुनाने चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन में इतने बुरे प्रसंग बनते हैं, कुछ प्रसंग बनते हैं, उनको हम याद रख लेते हैं और अच्छे जो किस्से हैं उसको भुला देते हैं। तो लेखक कहते हैं तो ऐसा करोगे तो अपना जीवन जो है वह बहुत ही कष्टदायक हो जाएगा, हमें जीने योग्य नहीं लगेगा, हम सब पर संदेह करेंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐसे बुरे किस्से को हमें भूल जाना चाहिए। जहाँ हमें धोखा मिला हो, किसी
किसी ने हमारे साथ बेईमानी की हो तो ऐसे किस्से हमको भूल जाने चाहिए और सच्चाई और ईमानदारी से भरे किस्से को हमें याद रखना चाहिए। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। पैमाना यानी मापदंड, त्रुटि यानी कमी, कातर ढंग यानी लाचार, कातर ढंग से देखना यानी लाचारी से देखना, गंतव्य यानी मुख्य स्थान, वंचना यानी धोखेबाजी। और कुछ मुहावरे देख लेते हैं। चेहरे पर हवाई उड़ना यानी चेहरे का रंग फीका पड़ जाना। ड्राइवर जो है उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी यानी उसका चेहरे का रंग जो है वह फीका पड़ने लगा। कातर ढंग से देखना, बस ड्राइवर था वो कातर ढंग से देख रहा था यानी कि भयभीत होकर देखना। यहाँ ड्राइवर जो है वह लेखक की ओर भयभीत होकर देखने लगा था। ढाढ़स बांधना यानी तसल्ली देना, हिम्मत बढ़ाना आदि होता है। ज्योति बुझना यानी मरना। तो यहाँ जो है कुछ मुहावरे थे। अब हम कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरे मन को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी सच्चाई और ईमानदारी करने वाले लोग जो है मौजूद है। कुछ प्रश्न की बात कर लेते हैं। आजकल समाचार पत्रों में कौन से समाचार भरे रहते हैं। आजकल समाचार पत्र में कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो उत्तर है चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आजकल समाचार पत्रों में कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी और भ्रष्टाचार। यहाँ 5 जो है समाचार हमें लिखने हैं। इसके अलावा अपने आप कुछ और समाचार नहीं लिखने हैं। यहाँ जो पाठ में लिखा गया है वही हमें समाचार लिखने हैं। आजकल समाचार पत्रों में कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आज देश का वातावरण कैसा बन गया है? आज देश का वातावरण कैसा बन गया है? तो आज देश का वातावरण ऐसा बन गया है जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा।
आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं, ऐसा लग रहा है देश का वातावरण, क्योंकि चारों ओर जो है चोरी, ठगी, डकैती, भ्रष्टाचार के इतने समाचार भरे रहते हैं कि देश का वातावरण ऐसा बन गया है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। भारतवर्ष ने किसे अधिक महत्व नहीं दिया? भारतवर्ष ने किसे अधिक महत्व नहीं दिया? भारतवर्ष यानी भारत देश ने किसे अधिक महत्व नहीं दिया है? तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तु के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तु यानी हमारे सुख सुविधाएं की जो वस्तु होती है उसे हम भौतिक वस्तु कहते हैं। भौतिक वस्तु यानी हमारे जो मोह शौक के जो साधन है उसे हम भौतिक वस्तु कहते हैं। रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला जो है वो भौतिक वस्तु है, लेकिन भारतवर्ष ने उसे अधिक महत्व नहीं दिया है, क्योंकि भारतवर्ष ने त्याग और बलिदान को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो किसे महत्व नहीं दिया है? तो भौतिक वस्तु के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। अगला है, मनुष्य के मन में कौन कौन से यहाँ विचार लिखा है? तो यहाँ विचार को हटाकर हमें क्या करना है? विकार लिखना है। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार भरे हुए हैं? विकार यानी दुर्गुण, दुर्गुण कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न में टेक्स्ट बुक में विचार किसी किसी को लिखा होगा और नई टेक्स्ट बुक होगी तो उसमें विकार लिखा होगा। तो यहाँ विचार जो है उससे हटाकर हमें क्या लिखना है? विकार लिखना है। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार, कौन कौन से विकार हैं? विकार भरे हुए हैं। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार यानी दुर्गुण भरे हुए हैं? तो उत्तर है काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार भरे हुए हैं। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार भरे हुए हैं? तो मनुष्य के मन में चार जो है दुर्गुण या विकार भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इन चार को आपको याद रखना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार भरे हुए हैं। भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कानून और धर्म हमने दोनों को एक ही माना है, इसलिए भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो बस कंडक्टर बस अड्डे से एक नई बस और लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर लौटा था। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? जब वो साइकिल लेकर चला जाता है तो वह क्या लेकर लौटा था? तो बस अड्डे से एक नई बस लेकर और लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर लौटा था। लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिलने लगी है? सच्चाई, आजकल सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और बेईमानी और
धोखे से काम करने वाले फल फूल रहे हैं, ऐसी स्थिति में महान मूल्यों के बारे में हमारी आस्था हिल रही है। सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाले भोले भाले श्रमजीवी जो है वो पीस रहे हैं तथा झूठ और फरेब का जो रोजगार चलाने वाले फल फूल रहे हैं। ऐसे में महान मूल्यों के बारे में हमारी आस्था हिलने लगी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में क्या कहा है? तो रविंद्रनाथ ने अपने प्रार्थना गीत में कहा है कि इस संसार में नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसे समय में भी हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तुम पर कभी संदेह न करूं। संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसी स्थिति में भी हे ईश्वर मुझे तुम पर कभी संदेह न हो, ऐसी मुझे शक्ति देना। यहाँ लेखक ने रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्ति को भी याद किया है। भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो भारत एक महान देश है। यहाँ पर कई जाति और प्रजाति के लोग यहाँ आकर बसे थे और सभी लोगों के आदर्श को हमने अपनाया है। हिंदू और मुस्लिम, आर्य और द्रविड़, भारतीय तथा यूरोपियन, इन सभी जातियों की यह मिलन भूमि है। इसलिए भारत को महामानव समुद्र कहा गया है। महामानव समुद्र यानी जिस प्रकार समुद्र का पानी कभी सूख नहीं सकता, क्योंकि समुद्र में कई नदियों का जल एकत्रित होता है। सभी नदियां जो है अंत में समुद्र को जा मिलती है। ठीक उसी प्रकार भारत एक समुद्र के समान है जो कभी सूख नहीं सकता। और यहाँ पर अनेक जाति और प्रजाति के लोग यहाँ पर आए थे और यहीं के होकर रह गए थे। और हमने उन सभी देशी और विदेशी सभी जाति के आदर्शों को अपनाया है। यहाँ जो है वह देशी और विदेशी सभी प्रजातियों की मिलन भूमि है। इसलिए लेखक कहते हैं महामानव समुद्र भारत देश को कहा गया है। भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो क्योंकि भारत देश इतना महान है कि सभी धर्म और जाति के लोगों को अपनाया है, उसके गुणों को अपनाया है और आदर्शों की यह मिलन भूमि है, इसलिए उसे महामानव समुद्र कहा गया है। भारत में कौन कौन सी जाति आई थी? तो आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुस्लिम, भारतीय तथा यूरोपियन, यहाँ सभी जातियों की मिलन भूमि है। इसलिए भारत देश को महामानव समुद्र कहा गया है। तो यहाँ पर हमने पाठ 5.3 जो है उसमें हमने देखा क्या निराश हुआ जाए। लेखक ने अपने विचार को अभिव्यक्त किया है, उस विचार को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ लेखक का कहने का तात्पर्य ही यह है कि भले ही माहौल बहुत बुरा है, यहाँ चारों ओर ठगी, डकैती, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि से भरे हुए समाचार भले ही रहते हों, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी के कई गुण उनमें हैं। तो लेखक के जीवन में भी ऐसे दो ईमानदारी से भरे किस्से जो है उनके जीवन में बने थे। उन्होंने इस किस्से को इसलिए बताया है कि लोगों के मन में जो है वह सच्चाई और ईमानदारी जागृत हो। भले वातावरण बुरा है लेकिन हम पर उसका असर नहीं पड़ेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई और ईमानदारी का प्रचार करना है। हम जिस प्रकार सबको संदेह की दृष्टि देख रहे हैं और जिस प्रकार हम बुराई में रस ले रहे हैं और उसके किस्से ज़्यादा से ज़्यादा सुना रहे हैं, उसको हमें भूल जाना चाहिए और हमें सच्चाई और ईमानदारी से भरे किस्से को ही सुनाना चाहिए। लेखक का कहने का तात्पर्य यही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेखक जो है वो हमें कहते हैं कि अभी भी मेरे मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो यह पाठ के प्रश्न और पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है उसको आपको समझ लेना है। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।